both these institutions are going to work on three important components for the benefit of, in particular, students of Kargil and students under this memorandum and the signed agreement. Both this organization is also going to conduct research and document indigenous knowledge system. In the coming future, we also plan to conduct skill development activities, specifically focusing on the promotion and the production of local art and craft. This memorandum of understanding was signed a month back, but due to COVID situation and the challenging times we are in, we could not initiate the activities. But I'm very hopeful, and I'm very happy, today to announce that with this e-workshop we are going to start the series of activities we have planned under our agreement, and this is going to be the first in that direction, and more sooner. Let's say, for example, in coming few days, we are formally going to launch the other two important components of the projects we have agreed upon. So, with these words, once again, I'm very grateful to Gandhi Smriti Darshan Samiti for the information of participants from Kargil and Government Degree College Kargil. Let me tell you that Gandhi Smriti Darshan Samiti is basically an Ministry of Culture. They organize, conduct, and promote activities on Gandhian peace teachings. So once again, on behalf of Government Degree College Kargil, we are very grateful to Team Gandhi Smriti Darshan Samiti, and especially the director, Sahab. Unfortunately, he due to certain official engagements, he is not joining us today. But I'm hopeful, when we will be doing our launching event, he will be with us to to share his thoughts and ideas on how to go ahead on our projects. To begin this session, first of all, I would like to invite Dr. Vedavyas Kundu, who is the program officer of Gandhi Smriti and Darshan Samiti, and Dr. Vedavyas will share his thoughts, on today's event, as well as on different activities signed under the MOU. Dr. Vedavyas, sir. Thank you, Javed. So it is always been our honor to work with our youth and the children from Kargil, and it's really wonderful having this program with the Government Degree College Kargil today. And as Dr. Javed rightly pointed out, we have signed an MOU with the Government Degree College Kargil to promote the idea of nonviolent communication, the indigenous knowledge systems, and to develop an online course and various other activities. So I think this is going to be very useful for promoting different kind of activities to the children and the youth of Kargil in every possible way. And in that context, today's session is the first as part of that MOU. We have been having several different programs with the Kargil team with, in different ways. In fact, for your information, for the information of all the students, we also organized in the pre-COVID era a national youth conclave in Kargil. So we have been working closely with our friends in Kargil, and we hope to continue this program in a big way in the days and years to come. So today's session is going to be on non-violent communication, and also it's important that to note that we have started this free online course on non-violent communication. So after this session, we will like all of you to actually do this free online course. All the students of the college can take it up,
Also, as I've been telling Dr. Javed that we are, as part of the MOU with other universities, we are introducing this whole program as part of an elective paper in different, as part of different other courses. Like, for instance, one of the universities in Uttar Pradesh, we are introducing it as part of the graduation and post-graduation of mass communication. So we could explore that possibility also, introducing it as an elective paper in both graduation and post-graduation level for the friends in Kargil. But to start with, our free online course that is there, the students of the college can actually take it up. You see, for your information, we have the course in English, Hindi, Tamil, Malayalam at this stage, and hopefully we will be able to have a Manipuri version in the next 1 month or so. Also, at the international level, this program has got a major international traction, and we have been conducting these workshops for students in different countries and universities. And we have had this course was translated into Kyrgyz language, and a very large number of students from Kyrgyzstan actually did this course. So similarly, it was translated into the Swahili language, and large number of schools in Uganda have taken up this particular course. So it will be fascinating to understand why nonviolent communication plays a very, very important role in our lives in today's world, where we are all running for different kind of goals, and many times our communication ecosystem, the architecture of our communication sometimes becomes dysfunctional, and because of that there is an issue of breakdown in communication, breakdown in relationships, conflicts, disputes, all so on and so forth. So in that context, non-violent communication becomes extremely important. So today's session, I would like my colleague, Mr. Gulshan Gupta, to conduct it. And so may I request Mr. Gulshan Gupta, who is our Northeast coordinator, to conduct this workshop. It will be through PowerPoint. It will be through interactive session. And then after the proper presentation, we could take in some questions and answers for that. And so, Gulshan, are you there? Uh, Yes, sir, I am there. So your time starts now. So, am I audible to all? yes, yeah, please, Visible yes, to all? carry on. Yes, yes. Please. Thank you, Vedavyas sir, for giving the opportunity to take my to share my views on nonviolent communication, and I welcome everyone. Thank you, Dr. Javed. Let me share my PowerPoint presentation, and actually this presentation is made by Dr. Vedavyas Kundu only, and I will be sharing this with you. I hope the presentation is visible to all. Yes. Thank you. So today's session will be on non-violent communication, as Dr. Vedavyas Kundu sir introduced. Let me begin. When we talk about non-violent communication, according to UNESCO, peace should never be taken for granted. It is an ongoing process, a long-term goal which requires constant engineering, vigilance, and active participation by all individuals. It is a choice to be made on each situation and everyday life decision to engage in sincere dialogue with other individuals and communities, whether they live a block or a click away. So I think when we talk about non-violent communication, it is not only about an individual. We live in a society, we are human beings, so we must consider a society, and we must focus on our behavior. It should be non-violent to all. When we talk about the importance of non-violent communication, so a very eminent scholar from Austria, Paul Waterloo, had said that we cannot not communicate.
ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी बात ना कर सकें. We can communicate through words, through images, through eyes, through listening. Actually, we can communicate with our all uh, what we say. जो 5 इंद्रिय है हमारी, 5 senses, we can communicate with all senses. Then how we communicate and what we communicate determines our relationships with others. It can either spoil our relationships or unite conflicting parties. Non-violent communication can offer wisdom and help to a friend or a stranger, or offer communication can offer abuse and perpetuate hatred and negativity. Let me share an exercise with all the participants, and I will request all the participants if they could share their experience. Then whenever if they had a bad fight with their close friends, and both of them have used foul language to each other. So did they have an impact on them? If anyone share with their experience, it will. Anyone will share their experience if they had a bad fight with their friends and they have used any foul language to them. Yes, can I share my experience, sir? Yes, they can. Participants can write in chat box also. Yes, you can share your experience. Of course, sir. Whenever we have a fight with our friends, obviously the experience itself is not a good. When we use any sort of language that hurt each other, so obviously for some days we do. Don't talk to each other. But of course, it is a experience which we feel that it shouldn't have happened. But of course, if there is a use of foul language in that, then of course that becomes a big issue also. And for Yes. some days we won't even talk to each other. But yeah, later on we realized that yes, it was a mistake on both our part, and yes, that would be experience, sir. Anyone else would like to share? Any student who would like to share their experience? So we feel bad when we use any abused language with our closed ones. We feel bad. Actually, then the language what we have used to our closed one, it remains in our mind. It pinches us to think over it again. हम आराम से बैठ नहीं पाते. I think I can be bilingual and can use Hindi also. Yes, that would be good, sir. Okay, and for me also it would be better. Yeah, obviously. वो जब हम कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो दो सामने वाले को सुनने की लिए थोड़ा तकलीफ देती है, वो जो थॉट है जो हमने उसको कहा वो हमारे माइंड में भी घूमता रहता है. हम शांत नहीं होते जब हम ऐसी कोई लड़ाई करते हैं या खराब भाषा का यूज करते हैं, तो वो हमें भी तकलीफ देता है. सामने वाले को तो तकलीफ देता ही है, हमको भी तकलीफ देता है. तो द बेस्ट वे इज टू बी अ नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर. हमने जब बात किया, हमने जब कम्युनिकेट किया, हमने कौन सा वर्ड यूज किया कहते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आवर कम्युनिकेशन हेल्प्स मोल्ड आवर रियलिटीज, आवर पर्सपेक्टिव्स एंड इमोशंस. ऑफन वी सी, जब हम कोई ऐसी घटना देखते हैं और उसके बारे में अपना कोई एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, और यदि हमने वो पर्सपेक्टिव, वो इमोशन, वो थॉट किसी के साथ शेयर किया, तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए जिन शब्दों में हम अपनी बात रख रहे हैं, क्या वो सामने वाले के लिए रिस्पेक्टफुल है. आवर वर्ड शुड बी रिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन. Our words, our communication makes us to feel more connected to each other. Our communication is a reflection of the inner workings of our mind.
हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, और उस सोच को हमने क्या वर्ड्स दिए, बोलते समय हमने उसको किस तरह से बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे विचार हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्द हमारी जो हमारा जो कैरेक्टर है, हमारे माइंड में जो चल रहा है उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारा कैरेक्टर हमारे वर्ड्स प्रेजेंट करते हैं, और वही जो हमारी हैबिट बन जाती है तो वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। सो एवरीथिंग वी कम्युनिकेट originates from the contents of our mind। सारा जो खेल है वो दिमाग का है, और दिमाग का खेल आप अभी जो है वो वायलेंट है या नॉन वायलेंट है, ये आपके जो, हेलो, सो audible, am I audible to all? Yes, sir. Yes, yes. Yes, Sir. तो हमारा जो प्रेजेंट कैरेक्टर है वो तुरंत नहीं बना, वो आज का बना नहीं है, उसके पीछे हमारी पूरी एज है। यदि मान लीजिए आज हमारी एज 16 या 20 या 25 ईयर्स है, और आज हमारा जो भी कैरेक्टर है, आज हमारी जो भी इमेज है सोसाइटी में, वो आज की नहीं है, वो पिछले 25 ईयर्स से जो हमने किया है उसका एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। हम पहले नॉन वायलेंट थे या वायलेंट थे, हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही मैच्योर था, रिस्पेक्टफुल था, कंपैशनेट था, वो डिसाइड करता है कि आज लोग आपको कैसा देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब अपनी बात रखते हैं तो किन शब्दों में रखते हैं, हमारे शब्द ही हमारी पहचान बन जाते हैं। So the challenge is how our communication ecosystem becomes a source of positive coexistence and creation of values। अब जब हमारा कैरेक्टर आज का नहीं है, वो बहुत पिछले से, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से वो आज तक की जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा कैरेक्टर है। तो अब हम हमारा जो कम्युनिकेशन इकोसिस्टम है, हमारी जो जो बात करने की हमारी आर्ट है, उसको हम एक पॉजिटिव कैसे बनाएं, उसको हम वैल्यूएबल कैसे बनाएं। तो इंपॉर्टेंट ये है, when we get immersed in words that heals and constructive dialogue that human beings can become truly human। यदि हम ऐसे शब्दों का यूज करें जो सामने वाले के दर्द को कम करे, जिससे हम बात कर रहे हैं उसको कर्ण प्रिय हो, सुनने में अच्छा लगे, तब सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारी जो इमेज है वो अच्छी बनेगी, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो मीठा होगा, और हम ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट कर पाएंगे। हम सामने वाले की जरूरत को समझ करके अपने शब्दों को बोल सकते हैं, तो ज्यादा हम सोसाइटी से कनेक्ट हो पाएंगे। लॉर्ड बुद्धा कहते थे, वर्ड्स हैव बोथ द पावर टू डिस्ट्रॉय एंड हील। हमारे जो शब्द हैं वो सामने वाले को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और उसको एक नया जन्म भी दे सकते हैं। जब हमारी बातों में काइंडनेस होगी, उसमें सच्चाई होगी, तो हम एक दुनिया को बदलने की ताकत भी रखते हैं। तो हमारे शब्द बहुत कुछ है, हमारा कम्युनिकेशन बहुत कुछ है। महात्मा गांधी कहते थे, आई ऑब्जेक्ट टू वायलेंस बिकॉज इट व्हेन इट अपीयर्स टू डू गुड, द गुड इज ओनली टेम्पररी, द एविल इट डज इज परमानेंट। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक अच्छा आदमी है, वो सारे काम अच्छे करता है, एक अच्छा आदमी सारे काम अच्छे करता है, लेकिन कभी उसने एक छोटी सी गलती कर दी तो सभी के ध्यान में केवल वो गलती आती है, वो जो मिस्टेक है वो सबके ध्यान में आएगी। क्योंकि एक अच्छे आदमी ने, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं था, वो एकदम सफेद था, उसने एक गलत काम किया तो वो जो धब्बा है काले रंग का वो सबके ध्यान में आएगा। लेकिन एक बुरा आदमी है, वो कोई खराब काम करता है, वो सबके ध्यान में नहीं आता, क्योंकि लोगों को पता है कि वो खराब आदमी ही है, वो खराब ही काम करेगा। लेकिन कभी वो उसने अच्छा काम कर दिया तो लोगों की नजर में आता है कि वो खराब होते हुए भी अच्छा कर रहा है। तो वायलेंस में जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। वायलेंस के दौरान कुछ अच्छा काम किया तो आप वायलेंट हो, लेकिन वायलेंट रहते हुए कुछ अच्छा काम करते हो, वो टेम्पररी कैरेक्टर है आपका, परमानेंट कैरेक्टर नहीं है।
Latin father given by phone. कि अभी हमने पढ़ा कि वर्ड्स के पास जो वर्ड में जो पावर है वो हील भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन कहते थे वी कैन कंप्लेन बिकॉज रोज बुशेस हैव थॉर्न्स और रिजॉइस बिकॉज थॉर्न बुशेस हैव रोजेस। इसको यदि हम हिंदी में बोलें तो हम ये कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई फूल जो गुलाब का फूल है उसमें कांटे होते हैं, लेकिन ये इसको देख करके हम खुश भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख सकते हैं कि कांटों के बीच में गुलाब खिल जाता है। तो क्या एक सत्यम पॉजिटिव बताएं? थॉट्स हमको Latin लेकर के चलना है, पॉजिटिव नॉन माइंडसेट है लेकर चलना है जो और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें इसमें हेल्प करता है। एक पाँच मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. छः Okay, so दो छः we are used to respond and communicate in a particular way which we think is proper. क्या होता है कि ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी और आपके साथ भी और बाकी जो लोग हैं दुनिया में उनके साथ भी होता है। हम लोग अपनी बात को उतना ही बताते हैं जो हमारे वर्जन में ठीक होता है, जो हमारे माइंडसेट से लगता है कि हाँ भाई इतना बताना ठीक है, उतना ही हम बताते हैं, उतना ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यूनिवर्सली ठीक है, उसको बहुत कम लोग रख पाते हैं। लेकिन जब हम ट्राई करेंगे, हमको किसी डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, हम सच्चाई बोलने की आदत डालेंगे, हम ट्रुथ कहने की आदत डालेंगे और नॉन वायलेंट वे में कम्युनिकेट करने की एक आदत डालेंगे, तब हमारे थॉट्स भी नॉन वायलेंट होंगे और हमारा कम्युनिकेशन भी नॉन वायलेंट होगा। तब हमारे अंदर ये डर नहीं रहेगा कि यदि मैंने ये बात शेयर किया, ये सच्चाई शेयर किया, तो मेरे लिए लोगों की खराब इमेज बनेगी। इस भय से, इस डर से हमको निकलना चाहिए। और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एक टेक्निक है जिसमें हम लोग अपने आप के डर को भी खत्म करते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन केवल सोसाइटी के लिए नॉन वायलेंट होना इतना ही नहीं है, अपने लिए भी हम नॉन वायलेंट बनने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़े नाम है मार्शल रोजनबर्ग, जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर है, वर्ल्ड में बहुत नाम है इनका, लोग जानते हैं कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पे इनका बहुत काम है। उन्होंने कहा नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन इज फाउंडेड ऑन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स that strengthen our ability to remain human. हम आदमी बने रहे, हम इंसान बने रहे, हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन इतनी ताकत हमको देता है। और बहुत सारी विपरीत परिस्थिति में भी, जब हमारी परिस्थिति बहुत उल्टी है, हमारे फेवर में नहीं है, तब भी यदि हम नॉन वायलेंट हैं तो हमको ह्यूमन बने रहने के लिए हम उसमें गुस्सा नहीं करेंगे, हम उसमें झगड़ा नहीं करेंगे, हम उसमें फाइट में नहीं जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमको ये ताकत देता है कि विपरीत कंडीशंस में भी हम बहुत नॉन वायलेंट बने रह सकते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल बने रह सकते हैं। 1 second, sir. यस, सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने फोन म्यूट क्योंकि ये इको आ रहा है। कनीस फातिमा, सकीना बानो, सारे लोग म्यूट पे रखें प्लीज। 6 3 5 सकीना बानो म्यूट पे रखें प्लीज। सारे पार्टिसिपेंट्स अपने माइक्रोफोन म्यूट पे रखें, यहाँ इको आ रहा है, हम अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। yeah, we can start Continue. again. Okay, Yes. yeah, I have muted all, so now I am audible now? Yes. Okay, so now the next point is, why do we need a strong foundation for a non-violent communication ecosystem? जन्म से एक बात सभी लोग ध्यान रखना, जन्म से हम सभी लोग नॉन वायलेंट होते हैं। वायलेंट हमारे जन्म से ही हमको भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने नॉन वायलेंस देके भेजा है। हम वायलेंस नहीं करते,
हमारी जब जरूरत होती है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको जब भूख लगेगी तो वो रोएगा, इट इज हिज और हर नीड। हम नीड के समय केवल उसकी डिमांड करते हैं, वॉयलेंट नहीं होते हैं। नॉन वायलेंस हमारे इनर स्ट्रेंथ का हिस्सा है बाय बर्थ, ये हमारा गॉड गिफ्ट है। जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम सोसाइटी में घुलना सीखते हैं, मिलना सीखते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारी एज बड़ी होती है, हमारे एक्सपीरियंस अलग अलग आते हैं, तब हमारे कैरेक्टर में, हमारी हैबिट्स में अलग अलग चीजें जुड़ती है, उसमें वॉयलेंस भी एक है। लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हम वॉयलेंस को प्रायोरिटी देंगे अपने अपने लाइफ में, या नॉन वायलेंस को प्रायोरिटी देंगे। नॉन वायलेंस यदि हम बने रहने की कोशिश करते हैं, तो जब वायलेंट सिचुएशंस आएंगी, जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस आएंगी, हम नॉन वायलेंट वे में उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम वायलेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में दोनों चीजें हैं, नॉन वायलेंस भी एग्जिस्ट करता है और वायलेंस भी एग्जिस्ट करता है। वायलेंस एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमें नॉन वायलेंट का सिग्निफिकेंस पता है, इसीलिए हम उसकी बात कर रहे हैं आज। तो हम नॉन वायलेंस को, उस कम्युनिकेशन को, यानी नॉन वायलेंट को कम्युनिकेशन में कैसे लेके आए और उसके लिए इकोसिस्टम कैसे डेवलप कर पाए, उसके लिए गांधी जी ने ये जो 5 पिलर हमें दिए, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें जिसको हम यदि सीखें, लर्न करें, उसको हम आत्मसात करें, वाइब करें, तो हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को अपने अंदर ला सकते हैं। तो 5 पिलर्स ऑफ गांधीयन नॉन वायलेंस में पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग यदि मान लीजिए किसी से ऐसे करके बात करते हैं, नमस्ते करके बात करते हैं, या फिर ग्रीटिंग्स के साथ बात करते हैं, तो क्या वायलेंस कर सकते हैं? आप कोई भी बताए, आप में से कोई भी चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है। जब हम नमस्ते करके बात करते हैं, तो क्या आपके मुंह से एब्यूजिव वर्ड्स निकल सकते हैं? क्या आपके बिहेवियर में नॉन वायलेंस आ सकती है? नो सर। नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। तो रिस्पेक्ट देना सीखेंगे जब हम, सामने वाले को भी उतना ही हम रिस्पेक्ट करेंगे जितना हम चाहते हैं, तो वायलेंस का स्कोप खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं रिस्पेक्ट के लिए। मान लीजिए, जैसे अभी हमने एक बात किया कि एक दोस्त के साथ में यदि आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो क्या उसके साथ आप उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रख सकते हैं जैसा पहले था? मुश्किल है। No. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक घर में 2 भाई रहते हैं, 2 भाइयों में यदि कभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उन भाइयों ने खराब लैंग्वेज का, यानी कि वायलेंट वर्ड्स, एब्यूजिव वर्ड्स का यूज किया, तो उन दोनों भाइयों में जो रिश्ता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। यदि फ्यूचर में कोई फेस्टिवल आया, कोई ओकेजन आया, किसी का बर्थडे आया और आपको उसने इनवाइट किया, तो आपको वो बात जरूर याद आएगी जब आपने उसके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दी थी। और हो सकता है कि आप उसके घर की सीढ़ियां ना चढ़ पाए, क्योंकि आपके अंदर एक गिल्टी फील रहेगा हमेशा कि मैंने एक समय पर अपने भाई के साथ मतलब वायलेंट बात किया था, खराब शब्दों का यूज किया था, रिस्पेक्ट करना भूल गया था। बहुत जरूरी है कि हम उतना रिस्पेक्ट तो जरूर करें जितना हम दूसरे से चाहते हैं। तो नॉन वायलेंस का जो पहला पिलर है वो है रिस्पेक्ट करना। यदि मैं चाहता हूं कि मैं सोसाइटी में जितने लोग हैं वो मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करें, तो पहली ड्यूटी मेरी है, आपके अधिकार से पहले, आपके राइट से पहले आपका कर्तव्य आता है, आपकी ड्यूटी आती है। तो यदि आप अपना राइट चाहते हैं, तो पहले अपनी ड्यूटी पूरी करिए, आपको रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? मैं जिस बात को कह रहा हूं, ठीक है, मेरा कहने का जो तरीका है वो नॉन वायलेंट हो सकता है, लेकिन जो मैंने कहा वो सामने वाले को समझ नहीं आया, उसने कुछ और समझ लिया, तो वहां भी वायलेंस का स्कोप रहता है। इसीलिए
हमको क्या करना है, हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं, हम जिस चीज को कहना चाह रहे हैं उसको ऐसे शब्दों में कहना है जो सामने वाले की समझ में भी आए। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी असमीज में बात करूं या फिर आप लोग मुझसे अपनी भाषा में बात करें, मुझे दोनों ही समझ में नहीं आएंगी। आपको मेरी भाषा समझ नहीं आएगी और मुझे आपकी। तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज पर आना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमको ऐसी भाषा यूज करनी है, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो दोनों के लिए रिस्पेक्टफुल हो, हमारी समझ को बढ़ाते हो, हमारी मेरी जो बात है वो आप तक अच्छी तरह पहुंचती हो। इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो सेकंड पॉइंट हुआ अंडरस्टैंडिंग, पहला हुआ रिस्पेक्ट। नॉन वायलेंट के लिए हमें पहले रिस्पेक्टफुल होना है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि वो जो दो भाइयों में लड़ाई हुई, हमने जो पहले पॉइंट में डिस्कस किया, जो दो भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यदि बड़ा भाई मान लीजिए उसने इनविटेशन दिया था कि मेरे घर में बर्थडे है या कोई ओकेजन है और आप लोग आइए, शामिल होइए, मिलिए उस फेस्टिवल में। छोटा भाई जो है जाता है, वो ये फील भी करता है, वो गिल्टी फील भी करता है और सॉरी भी कहता है, माफी भी मांगता है। यदि वहां बड़ा भाई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वहां पे फिर नॉन वायलेंस अपना स्थान खो देती है, वायलेंस रिमेन्स देयर। तो जब वायलेंस को हटाना है तो हमें एक्सेप्टेंस की जो एक भाषा है वो सीखनी पड़ेगी। हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए, हमें हमेशा छोड़ना ये नहीं, जरूरी नहीं है छोड़ना हमेशा। एक्सेप्ट करने से सोसाइटी बढ़ती है, एक्सेप्ट करने से हमारी काबिलियत बढ़ती है। हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए लोगों को। यदि मैंने किसी दोस्त के साथ, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ में कभी कुछ भी ऐसा किया है जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, तो खुद जाकर के अपने आप आगे बढ़ करके हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि हम छोटे हैं तो अपनी गलती मानिए, और यदि हम बड़े हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आगे बढ़ करके उनको एक्सेप्ट करना सीखें। उनकी जो गिल्टी फीलिंग उनको हो रही है उसको उससे उनसे उसे पीछा छुड़ाएं उसका। वो हमेशा, हम नहीं चाहते कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो गिल्टी फीलिंग में हमेशा रहें। तो उनको ये आभास कराना चाहिए कि मैं तो सब कुछ भूल गया, आपको भी भूल जाना चाहिए। ये एक्सेप्टेंस का जो पॉइंट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्सेप्टेंस आप रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? तो एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या? मान लीजिए आपकी कम्युनिटी में आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी कोविड हुआ, कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लोगों की हेल्प की, सोसाइटी में जो जरूरत थी और यदि उनके वो काबिल थे उन्होंने वो जाके हेल्प किया लोगों का, और बिना किसी स्वार्थ के किया। कोई भी कुछ ऐसा पैसा भी नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने पैसे लगा करके लोगों की हेल्प की है। मान लीजिए आप भी उनमें से एक हैं। आप काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, जब बहुत जरूरत है समाज को तब आप अपना सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में यदि कोई आपको डांट दे, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे, आपको ध्यान ना दे, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि अरे मैं तो इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी लोग मुझे समझ नहीं रहे और मेरे को ऐसा कह रहे हैं। वहां जरूरत है लोगों को अप्रिसिएट करने की, और जरूरी नहीं है बहुत बड़ा काम किसी ने किया हो तो ही आप अप्रिशिएट करें। छोटे छोटे कामों के लिए हमने लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। यदि हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट है उसको अप्रिशिएट करिए, हमारे भाई बहन हैं, छोटे हैं बड़े, उनको अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट करने से क्या होता है मैं छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। अप्रिशिएट करने से जिस व्यक्ति ने जो अच्छा काम किया है वो उसको जारी रखता है। उसको लगता है कि मेरे काम की जरूरत है सोसाइटी को, इसलिए मुझे बढ़ावा मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो मैं इस काम को और मेहनत से करूं।
अपना कंट्रीब्यूशन और ज्यादा देता है, इसलिए एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। जिस दिन हम सभी लोग एक दूसरे को एप्रिशिएट करना सीख जाएंगे, आप यकीन मानिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगी। केवल एप्रिसिएशन के जो कुछ वर्ड्स हैं वो उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देते हैं, और वो खुद कोशिश करता है कि अब इससे ज्यादा देना जरूरी है, वो अपनी ड्यूटी समझता है इसको। तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट था हमारा रिस्पेक्ट करना सीखना, अंडरस्टैंडिंग होना, लोगों को एक्सेप्ट करना और उनको अप्रिशिएट करना। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कंपैशन। कंपैशन का मतलब, देखिए सीधा सा मतलब, कंपैशन का सीधा मतलब क्या होता है? दूसरों से स्नेह करना, दूसरों को ऐसा फील कराना कि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं, आप उनकी बातों को समझते हैं। जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में, जिन भी सर्कमस्टांसेस में वो हैं, आप उनको समझते हुए उसकी फीलिंग को समझ रहे हैं, आप कंपैशनेट हैं, आप उसके अलग नहीं है। जब भी कंपैशन की बात आती है तो फॉर एग्जाम्पल, यदि जंगल में एक सांप है, तो सांप का जो व्यवहार है वो काटना है, डसेगा आपको, वो सांप डंक मारेगा, लेकिन फिर भी वो डंक मारेगा। आप उसके घर में जाएंगे तो डंक मारेगा ही। इसका मतलब नहीं कि आप उसे कंपैशन करने लग जाएं, आप उसके सब प्रति प्यार जताने लग जाएं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे कहने का अर्थ क्या है? मेरे कारण उसको कोई हानि ना हो, ये मुझे ध्यान रखना है, यही कंपैशन है बस। लेकिन आप उसके घर में जाएंगे, उसको प्यार करेंगे तो वो आपको बख्शेगा नहीं, वो काट लेगा। कंपैशन का मतलब क्या होता है? मेरे कारण दूसरे को दुख नहीं होगा, और उस वो जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, उसको समझते हुए उसकी फीलिंग को मैं समझता हूं, ये कंपैशन है। आपको स्नेह जताना आना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल इसका मैं शेयर करता हूं। मान लीजिए एक बच्चा क्लास में कम नंबर लेकर के आया, और उसके दौरान उसके पेरेंट्स ने या उसके फ्रेंड्स ने उसको चिढ़ाना शुरू किया या उसको डांटना शुरू किया, उनके फादर ने उनको डांट दिया कि इतने नंबर कम क्यों आए। कंपैशन का मतलब क्या है? ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं होगा, लेकिन हो सकता है स्पोर्ट्स में ठीक हो सकता है डिबेट में ठीक हो सकता है वो किसी और चीज में ठीक हो। मुझे कंपैशनेट रहना है ताकि उसकी जो दूसरी कैपेसिटीज हैं उसको बढ़ाने में उसको मदद मिले। आप नहीं बढ़ाएंगे, वो खुद ही बढ़ाएगा, लेकिन जब तक उसको प्यार नहीं मिलेगा तब तक वो उस उस एनवायरमेंट में नहीं आएगा वो। इसलिए जरूरी है कि हम कंपैशन दिखाएं, और सोसाइटी में सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन? नटवर ठक्कर जी एक बहुत बड़े गांधीयन थे, अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ। वो कहते हैं, टू मी, मेरे लिए नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन लिटरेसी वुड मीन हाउ आवर कम्युनिकेशन एफर्ट्स शुड बी नॉन वायलेंट। जितनी भी मैं बातचीत कर रहा हूं उसके जो सारे प्रयास है वो नॉन वायलेंट होने चाहिए। And how are our ability and capacity to communicate not only with ourselves but with our family and society be non-violent in all aspects. कभी कभी क्या होता है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करते हैं। नॉन वायलेंस या नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन मेरा परमानेंट हैबिट होनी चाहिए। आज यदि कोई मेरे फेवर में कह रहा है तो मैं नॉन वायलेंटली बात करूंगा, यदि कल वही मेरे खिलाफ में आगे खड़ा हो गया तो मैं वॉयलेंट दिखाऊंगा। ये आपका कैरेक्टर नहीं है। यदि आप नॉन वायलेंट कैरेक्टर के हो तो इसका मतलब क्या है? हर सिचुएशन में हर आदमी से, ये नहीं केवल अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से ही मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, नॉन वायलेंटली बात करता हूँ, और बाकी कोई आएगा तो मैं झिड़क के बात करूंगा। हर कंडीशन में और हर आदमी से मैं नॉन वायलेंटली बात करता हूं, ये मेरा नेचर है, मेरा कैरेक्टर है। तब आप एक नॉन वायलेंट ह्यूमन हुए।
And the entire process of communication, whether between individuals, groups, communities, and the world at large, should be non-violent in nature. नटवर ठक्कर जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि केवल मैं अपने लिए नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं, वर्ल्ड में जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, उन सबके प्रति मैं नॉन वायलेंट रहूंगा, ऐसा मेरा स्वभाव होना चाहिए, मेरा नेचर होना चाहिए. Now we come up upon elements of non-violent communication. Then the first element of non-violent communication is non-violent communication means complete lack of violence. हमारे थॉट्स में, हमारे वर्ड्स में, नॉन वर्बल एक्टिविटीज में, हमारे किसी भी बिहेवियर में, हमारे इवन हमारे माइंड में जो हमारे आइडियाज चल रहे हैं, उनमें भी वायलेंस ना आए. कंप्लीट लैक ऑफ वायलेंस इज द नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन. अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज द सेकेंड पॉइंट. हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप से भी कभी बात करने का समय निकालते हैं? कोई है जो कभी पूरे 24 आवर्स में 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स कभी अपने से बात करने का समय आप निकालते हो? Anyone is there who spend their time for inner dialogue? Anyone can share? Sir. Not audible. So let's move further. Understanding self means यदि हम अपने से बात करने का समय नहीं निकाल पाते, तो आप समझिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि यदि सबसे ज्यादा अच्छे थॉट्स आपको कोई दे सकता है, तो वो आप दे सकते हैं. हमको अपने से ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता. यदि हम ये मानते हैं कि मुझे मेरे से ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता, तो ये जरूरी है कि मैं अपने से बात करूं. और वो बात कैसी होनी चाहिए? वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए. कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? हम कुछ ऐसा एजेंडा तय करें कि जब मैं अपने से बात करूंगा तो मेरे क्या पॉइंट्स होंगे, मुझे किस चीज को लेके बात करनी है. अपने से ही बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें मेरी बढ़ोतरी होनी चाहिए, मेरी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मेरा फ्यूचर होना चाहिए, मेरा कैरेक्टर होना चाहिए. उसके लिए जरूरी क्या है? मैं थोड़ा सा टाइम, 24 आवर्स में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालूं. हो सकता है वो जब आप सोने जाते हैं रात में, उसके पहले 10 मिनट्स आप अपने आप को दें. वो 10 मिनट भी आपको बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे. वो 10 मिनट का जो सोच करके आप सोएंगे, वो 10 मिनट्स के जो थॉट्स हैं, वो रात भर आपके माइंड में घूमेंगे और आपको एक नई डायरेक्शन देंगे. जब आप सुबह उठेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका होगा. इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को टाइम देना सीखें. ये हमें हील अप करते हैं. हमारे अंदर जो डैमेज हुआ है उसको हील करता है. हमें अपने आप से बात करने का टाइम जरूर निकालना चाहिए. सबसे रिक्वेस्ट है कि आज से हम लोग शुरू करें अपने आप से बात करना. लोग समझेंगे पागल है क्या? नहीं, वो जरूरी नहीं है कि हम बोल बोल के बात करें. आप अकेले में बैठिए, 10 मिनट, 15 मिनट केवल अपने को दीजिए और अपने से बात करिए. आपने क्या गलत किया पिछले समय में, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. आपसे कोई नाराज है, कहीं वायलेंस हुई थी, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है और वो ठीक हो जाएगा. केवल आप सोचना शुरू करिए. आपने सोचेंगे और यहाँ पर एक्शन होगा, ये जरूर होगा, लेकिन आप पहले अपने से बात करना शुरू करिए. हमारे थॉट्स के बाद ही एक्शन आएगा. एक्शन पहले नहीं आ सकता. पहले आप सोचेंगे तब एक्शन होगा. इसलिए आप अपने से बात करना शुरू करिए. आज आपने यदि सोच लिया कि मुझे बात करनी है अपने से, तो पक्का आज अपने लिए 10 मिनट्स निकालिए. थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड पॉजिटिव लैंग्वेज, एक्सपेंडिंग आवर इमोशनल वोकेबुलरी. मान लीजिए आप कभी किसी से बात कर रहे हैं, आप फोन के ऊपर किसी से बात कर रहे हैं और आपको वहां से कोई पलट के बोलता है कि आपकी आवाज बड़ी मीठी है.
कितना अच्छा लगेगा आपको। और यदि कोई आपको ये कहता है कि जब आप फोन पे बात कर रहे हैं और आपको कोई ये कहता है कि आप बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। लेकिन उस एप्रिसिएशन ने क्या किया, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया। जरूरी है कि यदि हम एप्रिसिएशन चाहते हैं कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, यानी कि हम अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करें, पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करें, तब हमें अप्रिशिएशन मिलेगा। और जब अप्रिशिएशन मिलेगा तो आप खुद अपनी वोकेबुलरी भी बढ़ाएंगे। और वोकेबुलरी में जरूरी क्या होता है, कई बार जरूरी होता है कि हम ऐसे शब्दों का यूज करें जो सामने वाले के इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। आपको प्रेजेंट सिचुएशन समझनी होगी, जब आप बात कर रहे हैं कंटेम्पररी सिचुएशन समझनी होगी, उसके अकॉर्डिंग बात करने होंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स का सिलेक्शन करना होगा, तब आप दूसरे की नीड को समझ पाएंगे, उससे कनेक्ट हो पाएंगे। Desmond Tutu, he is very eminent scholar, speaker, author, and guru of non-violence, and he says, language is very powerful. It does not just describe quality, language creates the reality it describes. We should try to take responsibility of our action, words, and feelings and not blame others for these. कितने लोग होते हैं और ऐसा खास करके वर्क प्लेस पर, स्कूल्स में, कई बार फैमिली सिचुएशंस में भी ऐसा होता है, वो काम हमने किया होता है लेकिन उसके लिए हम सफाई दे रहे होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग सफाई देते हैं, रीजंस बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि ऐसा जरूरी नहीं होता हमेशा आप हर चीज के लिए रीजन बताएं या सफाई दें। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। जब आप अपने किए हुए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो यदि वो गलत भी हुआ होगा तो उसको ठीक करने का काम भी आप करेंगे, और इन फ्यूचर आप उसको ठीक कर देंगे, अगली बार आपसे वो गलत नहीं होगा। द फोर्थ पॉइंट इज अवॉइडिंग स्टीरियोटाइप्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार हम जिस मान लीजिए हम जिस घर में रह के बड़े हुए हैं, जिस कल्चर में रह के हम बड़े हुए हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहकर हम आगे तक आए हैं, 25 ईयर्स मान लीजिए मेरी एज है, तो 25 ईयर्स मैंने उस एनवायरनमेंट में बिताए हैं, तो उसका कुछ तो इम्पैक्ट पेपर होगा ही। यदि वहां पर कुछ गलत है, कुछ स्टीरियोटाइप है, उसको छोड़ना भी मुझे पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हम अपने आप सीखते जाते हैं, हम जरूरी नहीं है कि हम स्कूल में जाके सीखेंगे, सोसाइटी हमको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उसमें यदि हमने कुछ स्टीरियोटाइप सीखा है, कुछ गलत सीखा है, उसको अवॉइड करना हमें सीखना चाहिए, उसे अनलर्न करना चाहिए। एक एज ऐसी आती है जब हम मैच्योर होते हैं, सोचने के लिए हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तब हमें देखना चाहिए कि हमारे कोई थॉट्स, हमारी कोई बिहेवियर, हमारी कोई हैबिट ऐसी तो नहीं है जो दूसरे के लिए वायलेंट पैदा करती हो या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हो, उसे अच्छी ना लगती हो। ऐसी सिचुएशन से हमें बाहर आना चाहिए। पावर ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी की क्या पावर होती है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक स्कूल में एक छोटी सी बच्ची क्लास कर रही थी, तो क्लास टीचर ने देखा कि वो बच्ची रो रही है, उसका मन नहीं है पढ़ाई में, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही है और रोए जा रही है बार बार। उसको कुछ पूछते भी हैं तो जवाब नहीं देती है। जो क्लास टीचर थी, उनका जब क्लास का जो टाइम था वो खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गई, वो अपने चैम्बर में गई। ये जो लड़की थी, ये इनसे बात करने के लिए उनके चैम्बर में गई। लड़की रो रही थी। मैडम ने प्यार से पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या रीजन है। तो थोड़ी देर बाद लड़की ने बताना शुरू किया कि मेरे साथ ये समस्या है कि पेरेंट्स मुझ पर ध्यान नहीं देते, या फैमिली में बहुत कुछ ठीक नहीं है, मुझे डांटते हैं, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ खेलते नहीं है, या मेरा होमवर्क पूरा नहीं है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मुझे ये समझ नहीं आता है। जो भी उनके इश्यूज थे उसने शेयर किए। तो जब जब वो कोई प्रॉब्लम बता रही थी, जो क्लास टीचर थे वो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे थे, थोड़ा समझा रहे थे कि देखिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या कभी कभी आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। टीचर उनको थोड़ा थोड़ा
समझाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की अपनी कंप्लेन बताती जा रही थी। जब बार बार टीचर बीच बीच में कुछ बोल रहे थे तो लड़की ने छोटी सी बात कही कि मैडम आप केवल मेरे को सुन लीजिए, मैं उतने में ही ठीक हो जाऊंगी। मतलब क्या? उसके साथ कोई ऐसा नहीं था जो उसको सुन सके। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? सामने वाले को समझना, वैसा ही समझना जैसा वो अपने को समझ रहा है। यदि हम सड़क पर निकलते हैं और किसी भिखारी को देखते हैं तो हम बोलते हैं वो भिखारी है, वो भीख मांग रहा है, बैगर है। हम ये नहीं देखते कि वो बैगर है क्यों। यदि हम ये समझेंगे कि उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जिसके कारण वो भिखारी है, वो ठीक हो सकता है, वो चाहता भी है ठीक होना, लेकिन कंडीशंस ऐसी नहीं मिलती। एम्पैथेटिकल होना, एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है ताकि हम दूसरे की नीड, दूसरे की कंडीशंस को समझ सकें। उस लड़की के साथ भी यही था कि कोई उससे बात नहीं करता था। केवल बात करने से, केवल कम्युनिकेशन करने से ही उसको शांति मिल गई, उसको आराम मिल गया, उसको सॉल्यूशन मिल गया। हमारा कम्युनिकेशन नॉन वायलेंट हो, इसके लिए जरूरी है कि हम एम्पैथेटिक बने। अभी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपननेस। यदि हमारी कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम ओपन माइंड के नहीं हैं, हम अपने थॉट्स को अलग अलग खिड़कियों से, अलग अलग कल्चर से आने नहीं देते, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही नैरो होगा, संकीर्ण होगा, छोटा होगा। गांधी जी कहते थे कि मेरा जो रूम है, मेरा जो कमरा है, उसकी खिड़की, दरवाजे सब खुले रखना है ताकि नई हवा आती रहे। ऐसे ही हमें अपने माइंड के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, डोर्स हैं, सब कुछ खुला रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि हमारे कम्युनिकेशन को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सकें, कह सकें, अपनी बात को कहने का तरीका फ्लेक्सिबल रख सकें। ग्रेटिट्यूड। हम में से कितने लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड को सही मतलब में जानते हैं? कोई एक शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस ग्रेटिट्यूड को लेकर? एनीवन वांट टू शेयर any idea, any views on gratitude? So gratitude means आपके लिए किसी ने कुछ किया तो उसको थैंक्स कहना, ये ग्रेटिट्यूड है। लेकिन एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा अपनी माँ को कितनी बार भी थैंक्स बोल दे, वो ग्रेटिट्यूड पूरा नहीं कर पाएगा। तो थैंक्स कहना ग्रेटिट्यूड का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट। आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का थैंक्स कहना एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। परमानेंट होना, उस थॉट का आपके अंदर परमानेंट होना, और उसका उसका प्रेजेंटेशन भी होना। कई बार आप किसी के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाते, रखते तो हैं, आपके अंदर है थैंकनेस, आप उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, आप उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आप उसको बहुत मानते हैं, अंदर तो है लेकिन दिखाते नहीं है। सामने वाले को पता ही नहीं कि आप उसके लिए कितना प्रेम रखते हैं। वो जो थॉट है ना, थैंक्स के बाद की जो बात है, उसके ऊपर की जो बात है, वहां से ग्रेटिट्यूड शुरू होता है। एक बच्चा अपनी माँ को थैंक्स कह करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता। उसके लिए वो परमानेंट थॉट है, उसके लिए परमानेंट एस्पेक्ट है कि ग्रेटिट्यूड उसके लिए भरा हुआ है अपनी माता के लिए, अपनी मदर के लिए। ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते होंगे जब आप किसी के लिए अच्छा करते होंगे या कोई आपके लिए अच्छा करता होगा। तो उस मोमेंट को हमेशा ध्यान में रखिए, और जब भी मौका मिले आप जाकर के उसके पास अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करिए, बताइए कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे मन में जो भरा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज
कनेक्टिंग विद नीड्स ऑफ अदर्स। जैसे मैंने अभी एक भिखारी का उदाहरण दिया कि वो भिखारी है क्यों। जब तक हम उसकी जरूरत को नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला वैसा क्यों है, वो उस कंडीशन में क्यों है। या हम ही जब तक किसी कंडीशन में, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां से हम निकल नहीं पा रहे और सामने वाले को भी हम समझाना चाहते हैं लेकिन वो सुनना नहीं चाहता, जब तक हम सामने वाले को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसकी जरूरत से, उसकी नीड से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम नॉन वायलेंस दिखा नहीं सकते। एक्टिव एंड डीप लिसनिंग, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया बच्चे का जो एक क्लास टीचर के साथ बात करना चाहता था लेकिन क्लास टीचर उसको सुन नहीं रही थी ठीक से। बहुत जरूरी है कि आप एक्टिव एंड डीप लिसनिंग करते हो। जब तक आप अच्छा सुनेंगे नहीं, बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक आप अच्छा बोल भी नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी है कि हम एक्टिव लिसनर हों। मॉरलिस्टिक जजमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। कई बार होता है कि हम हर सिचुएशन में जज बन जाते हैं। हमारी और हर आदमी, मैक्सिमम लोगों की आदत होती है कि कोई सिचुएशन आई, किसी ने, और इंडिया में तो खासकर होता है, किसी ने कोई बीमारी बताई और हमने उसको दवाई बता दी। ये अक्सर होता है और हमारे साथ भी होता है कि हम भी कभी डॉक्टर बन जाते हैं। किसी ने कुछ बताया कि मुझे ये बीमारी है और हम उसको कोई ना कोई दवाई बता देते हैं। ऐसे ही कई बार कोई हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है, कोई बात बताता है और हम जजमेंटल हो जाते हैं। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वास्तव में हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, जजमेंट नहीं। हम ऑब्जर्वेशनल हो सकते हैं, हम ऑब्जर्वर हो सकते हैं, जज नहीं हो सकते। जज करने का मतलब क्या है कि आपने दो में से किसी एक का पार्ट ले लिया, आप किसी एक के पक्ष में हो गए। जजमेंट का मतलब यही होता है। विन विन सिचुएशन नहीं होती है, आपको विन विन सिचुएशन दिखानी है। नॉन वायलेंट का मतलब यही है कि कोई भी हारेगा नहीं, दोनों जीतेंगे। उसकी कंडीशन क्या है? आप नॉन वायलेंट हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, दोनों लोगों को उनकी बातें बताते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि आप वो कहाँ जाकर के जजमेंट को स्वीकारेंगे, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन को एक्सेप्ट करेंगे। अगला पॉइंट है निगेटिव इवैल्यूएटिव लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। हर आदमी के अंदर निगेटिविटी होती ही है। हर आदमी के अंदर कुछ कुछ ऐसे स्किल्स, उसके पॉइंट्स होते हैं जिसको आप बताएंगे ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें उनका डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हमने क्या है, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ उसका ध्यान कम जाए। ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ना हो, या केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव ही नेगेटिव हो। ऐसा नहीं होता है, दोनों एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं एविल पॉइंट ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, यदि हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव की तरफ जाए, तो हमें अपनी ड्यूटी क्या करनी है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को अप्रिशिएट करना है, उसके वेट को बढ़ाना है, पॉजिटिव के वेट को बढ़ाना है, ताकि नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाए। अभी हमने गांधी जी के 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, 5 पिलर्स ऑफ गांधी एंड नॉन वायलेंस। ये जो प्रेजेंटेशन है वो अभी खत्म होने की ओर है। लास्ट में केवल हम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट शेयर कर रहे हैं। वी मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर एज ब्रदर्स और वी विल पेरिश टुगेदर एज फूल्स। यदि हम एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहना पसंद करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम नॉन वायलेंट वे में एक दूसरे के साथ बात करना सीखें, कम्युनिकेट करना सीखें, दूसरों की नीड्स को समझना सीखें, दूसरों को रेस्पेक्ट करना सीखें, अप्रिशिएट करना सीखें, उनको एक्सेप्ट करना सीखें। मुझे लगता है आज के ये जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए वो कुछ हद तक मेरी बात कह पाए होंगे। नॉन वायलेंस क्या होता है, हम क्या, कैसे नॉन वायलेंट को अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो ऑल आर मोस्ट वेलकम। एंड डॉक्टर जावेद प्लीज। थैंक यू गुलशन जी, आपने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में सारे पार्टिसिपेंट्स को ये समझाया। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेरी है वो पूछें अपना क्वेरी गुलशन सर से।
regarding non-violence communication. कोई क्वेरी है किसी स्टूडेंट का? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। अच्छा, अब मैं वेदा व्यास सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बेसिकली टू कंडक्ट ए वर्चुअल टूर ऑफ द GSDS वेबसाइट, वहाँ स्टूडेंट्स को दिखाएं वेबसाइट पे कि कहाँ ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कोर्स है, किस तरह से उस चीज़ को रजिस्टर करना, अपने आप को रजिस्टर करना है, किस तरह से कोर्स को कंप्लीट करना है। आई विल रिक्वेस्ट वेदा सर, आप प्लीज टू कंडक्ट ए वर्चुअल टूर ऑफ द GSDS वेबसाइट एंड I will. थोड़ा एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स को कि किस तरह से। हाँ, Yes, Gulshan, can you share the link in the chat box for the? नहीं सर, not link sir. Uh, Please open the website on the screen and then. Okay. I am sharing the screen. Okay. Okay. We can provide the virtual tour. Okay. तो आप वहाँ दिखाएं कि वेबसाइट के कहाँ है ये इस कोर्स का रखा गया है, किस तरह से इस कोर्स के लिए रजिस्टर करना है और किस तरह से इस कोर्स को कंप्लीट करना है। Okay. So the screen is visible to all. Yes. Now, when we Yes. when we type Gandhi Smriti and Darshan Samiti in Google Chrome or any explorer, Internet Explorer, we see the website gandhismriti.gov.in. Here we can see the website. We click at the website and at the right hand side, we see the what's new column. Here, whatever Gandhi Smriti is organizing and events and launching courses on different subjects like mindfulness, non-violent communication, all are scrolling here. We can view all, and all the content will be shown. These all the contents are showing here. We have launched the orientation course on non-violent communication in Malayalam, in Tamil language. Here is our course on orientation course on non-violent communication on serial number 6. And we can download the course from this link. When we click at the link, the course is downloaded here. We can see the course here. This is the concept note. And the second link we have is the course material. This is the course material. I hope everyone can see the material, the link. Yes. So this is the course. We have 3 modules there. Module 1 is about non-violent communication. Module 2 talks about elements of non-violent communication. And in module 3, we have discussed how to practice non-violent communication in our daily lives. At last, we have given some reflection exercises on which participants will reflect their thoughts. And then at last, participants have to share their reflection exercises through email to Gandhi Smriti and Darshan Samiti. This is the course which is on NVC, non-violent communication, and it is in Hindi also. It is in, I think it is in 4 languages: Hindi, English, Tamil, and Malayalam. अच्छा गुलशन जी, Yes, sir. Yes.
अच्छा, ये जो कोर्स है तो ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, तो इसका जो हाँ जी, जब हम डाउनलोड करेंगे तो उस पे सारे रीडिंग्स डाउनलोड हो जाएंगे, राइट? ये राइट राइट सर। उसके बाद स्टूडेंट को बेसिकली अलग से कोई रजिस्ट्रेशन कराना है कि उसको रीडिंग्स कंप्लीट करके फिर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे किस तरह से स्टूडेंट ये कोर्स हाँ, इस कोर्स को ये परस्यू यस यस, करेगा? जो भी पार्टिसिपेंट इस कोर्स को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसमें जो 3 मॉड्यूल है वो पूरा पढ़ना है। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद लास्ट में रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हैं, वहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस का आप आंसर जब देंगे, उसको रिटर्न में आंसर करना है। यदि आप उस कंडीशन में होते हो तो आप क्या करोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने शेयर किए हैं। उस क्वेश्चंस को आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। जब आप उन आंसर्स को एक फाइल में सेव करके, वर्ड फाइल में सेव करके आप हमें शेयर कर सकते हैं। और शेयर का मैं आपको ईमेल आईडी दे रहा हूं, यहाँ पर चैट बॉक्स में मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं। gsdspeechstudies@gmail.com. This is the email ID on which all participants can share their reflection exercises. अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है सर? वो कोई भी स्टूडेंट ये कोर्स मटेरियल को पढ़े और उनको फिर रिफ्लेक्शन, कोई अलग से कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना उन्हें? जी हाँ, नहीं, ये नहीं फ्री नहीं नहीं। कोर्स है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। एक चीज हो सकता है, यदि मान लीजिए एक ही कॉलेज के, एक ही प्लेस के इसमें बच्चे हैं सारे, इसमें एक हम लोग ये तो सोच रहे थे कि ये हाँ जो जी, कोर्स है, हमारे जो यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इस पूरे कोर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे। सो जी, मुझे लगता है थोड़ा ऑर्गेनाइज में एक अच्छा ये रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, और इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी मेंबर से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है या कि स्टूडेंट्स का आप लोग को एक लिस्ट बनाएं, एक बैच बनाएं, और ये जो डिटेल्स हैं वो स्टूडेंट तक पहुंचाएं। फिर आप ही इनके जो जितने भी ये फीडबैक्स हैं वो कलेक्ट करके फिर इसको पास ऑन करेंगे जो भी कांटेक्ट पर्सन रहेगा जीएसडीएस में। No, no, actually, Javed, what we have to do is the students have to send individually to the email ID, and then ओके, Mr. Pankaj will send them a Google form in which they have to submit all the details like name, father's name, mother's name, and all for certificates. So once they fill अच्छा up the Google form, and then he will issue the certificate. So that means everyone will have to do it separately so that अच्छा, दिस the, गूगल फॉर्म सर, दिस yes, गूगल फॉर्म one has to do one has to fill this Google form before completing this no, no, course no. or after? Only after they send their reflection exercises, then only they will be shared the Google form. Okay, wonderful. Yeah. So if they're sending, in fact, I think quite a large number of people from Kargil have already done this course. No, like Hakim, I remember Hakima, Marzia, and Mm, quite a number of them have already done this course. So yes, yes, they yes. so this is the way they all of them will send their reflection. Like say for instance, there is this Asian College of Law in Delhi. So I'm Mm. finding such a huge number of students are sending. So everyone is sending separately, and then वो जो है गूगल फॉर्म पंकज सेंड्स एंड देन दे एक्चुअली And all the डू इट लाइक participants will get certificate, right? यस 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 Okay, दैट्स sir. राइट Okay. Okay. सो अगर स्टूडेंट का कोई क्वेरी है, किसी भी स्टूडेंट का या पार्टिसिपेंट का, आप पूछ सकते हैं। यहाँ हमारे साथ रोशन जी हैं, वेदा व्यास जी हैं, राजदीप जी हैं, सभी लोग गांधी स्मृति दर्शन समिति से हैं। सो किसी का कोई भी क्वेरी हो, दे कैन डायरेक्ट देयर क्वेरीज टू आवर फ्रेंड्स एट गांधी स्मृति दर्शन समिति, रोशन जी, वेदा व्यास जी एंड राजदीप जी। सो आई अंडरस्टैंड कोई क्वेरी नहीं है, और होपफुल अगर कोई भी अगर आप लोगों का क्वेरी रहेगा, आप प्लीज यू कैन कांटेक्ट अस, यू कैन कांटेक्ट इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी IQAC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल। सो ताकि हम लोग आपके जो क्वेरीज को एड्रेस कर सकें। सो मैं एक बार फिर रोशन जी का बहुत ही मशकूर हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर, आपने बहुत ही अच्छे से
और बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही डिटेल में इस अपना प्रेजेंटेशन रखा। तो हमने काफी एंजॉय किया, काफी सीखा, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी काफी अच्छा सीखा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें हमारा जो इंटरेक्शन है आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। सो विद दिस वर्ड्स मैं अपने कलीग Professor Norfil, Assistant Professor of Commerce, who is also the member of Internal Quality Assurance Committee, Common Degree College है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कॉलेज के बिहाफ पे, हमारे पूरे IQAC के बिहाफ पे, he will present the vote of thanks to our resource person of the event today, Mr. Roshan ji, and GSDS, and the entire participants of today's event. Norfil, sir. Thank you, Javed sir. Thank you very much. I hope today's event was a very productive one for all the students and all the participants. So lastly, on behalf of Degree College, I would like to extend our thank you to the Chief Guest, Shri Pankaj Shri Gyan, Director, Resource Person Dr. Vidya Vyas Sir, Program Officer, and also to Rajdeep Sir and Gulshan Sir, and also to the program convener Dr. Javed Nagis. Thank you all for making the and also to all the participants for making the program a very successful one. And lastly, thank you very much for participants also. Thank you very much. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you very much, Javed sir. Yes. Namaskar. Thank you very much. Thank you, Roshan, Gulshan ji. Thank you. Thank you. Mm.